مولانا صاحب یہ عملیات کا کام آپ کرتے رہتے ہیں جی تو یہ جو جنات کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے اوپر آتے ہیں، حاضر بھی ہوتے ہیں، یہ بات بھی کرتے ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ کے پاس اس کا کوئی تجربہ ہوا ہے؟ کوئی آپ کے علم میں ہو کہ آئے حاضر ہوتے ہیں یا اسی جو ہے نا یہ ڈرامے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنے یوٹیوب چینل صراط مستقیم میں خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا شاہ ولی اللہ صاحب جو ہے نا جنات کے حاضر ہونے کا جہاں تک تعلق ہے یہ قرآن سے بھی ثابت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یتخبطہ الشیطان من المس، کہ انسان کو شیطان جو ہے نا، ظاہر بات ہے شیطان بھی جنات کے قبیل میں سے ہے، وہ ہاتھ لگا کر اور اس کو خلط ملط کر دیتے ہیں، اس کو ڈیمیج کر دیتے ہیں، اس کی دماغ کو آؤٹ کر دیتے ہیں، اس کی جسم کے حرکات سکنات کو الٹے سیدھے کر دیتے ہیں. یتخبطہ الشیطان من المس، جو ہے نا یہ ہاتھ لگا کر یا اپنا کوئی ایسا اثر ڈال کر یا خود حاضر ہو کر جو ہے یہ جو ہے نا انسان کو خلط ملط کر دیتے ہیں. اور اسی طرح ایک حدیث میں بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیاطین انسان کے بدن میں خون کی طرح جو ہے کیا نام ہے سرکل کرتے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو عملیات کے حوالے سے ایک دعا بھی ہے جس کو ہم جنات والوں کے اوپر پڑھتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی حدیث کی کتابوں میں یہ دعا مذکور ہے. وہ یہ ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. ٹھیک ہے نا، اصل میں وہ ان یحضرون یہ تھا، آپ کو پتہ ہے وہ تو ایک صرفی نحوی تحقیق ہے. تو اس کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیاطین اور جنات کے حاضر ہونے سے پناہ مانگی ہے. ان یحضرون، کہ وہ حاضر ہو جائے، یعنی اندر انسان کا اندر آ جائے اور انسان کو خلط ملط کر دے. اس طرح جو ہے کیا نام ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وظیفے کا اندر ان چیزوں کے حاضر ہونے سے اللہ کی پناہ مانگی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ہے کہ اور بھی جو ہے سورہ ناس ہے، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ یہ انسانوں کے دلوں میں دماغوں میں یہ وسوسے ڈالتے ہیں. یہ جو اکثر لوگ جو ہے نا ڈپریشن کے مریض آتے ہیں، یہ اور بھی جو ہیں اس طرح کے دماغی اور لوگ آتے ہیں، اس میں بہت سارا جو ہے کیا نام ہے دخل جو ہے وہ ان شیاطین کے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ جب باتھ روم میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ایک دعا پڑھنے کی تلقین ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا بھی اس لیے پڑھی جاتی کہ یہ جو باتھ روم ہوتے ہیں، جو گندی جگہ ہوتی ہیں، یہ جو ہیں وہ ایسی جگہ ہیں کہ گندی جگہ ہیں کہ یہاں پر شیاطین رہتے ہیں، یہاں پر جنات رہتے ہیں، جو گندی جگہ ہوتی ہیں یہاں پر. تو یہ جو خبث ہے جو نہیں مذکر شیاطین اور جنات کو کہتے ہیں، خبائث جو ہیں وہ مادی اور نر، مادی اور جو ہے نا وہ مؤنث شیاطین اور جنات کو کہتے ہیں، یعنی جنات کی عورتیں. تو ان گندے جگہوں کا اندر جانے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے کے پناہ لے کے گیا ہے کہ یہ جو چیزیں مجھے اندر جانے سے جو ہے جانے کی وجہ سے نقصان نہ دے، یعنی اندر جانے سے. ایک اور روایت بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مغرب کے بعد جو ہے وہ اپنے بچوں کو باہر نہ نکالیں، اس لیے کہ مغرب کے بعد جو شیاطین اور جنات ہوتے ہیں وہ پھیل جاتے ہیں، تو یہ بچوں کو اوپر سایہ پڑ جاتے ہیں یا ان کے اثرات پڑ جاتے ہیں، پھر بچے ڈرتے ہیں، بدکتے ہیں، اور پھر ان کے جو آثار کی وجہ سے بچے ڈیمیج ہو جاتے ہیں. تو یہ مشاہدات بھی ہیں، تجربے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا قرآن حدیث سے بھی یہ چیزیں ثابتیں ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور انسانوں کے بدن پہ حاضر ہوتے ہیں. مزید آپ کا کوئی اگر سوال ہے تو بتا سکتے ہیں. ہاں، دوسرا یہ پوچھنا ہے مولانا، جیسے ہمارا بھی یہاں پر 8-9 سال ہو رہا ہے تقریباً، مختلف قسم کی مختلف جگہوں سے یہاں پر جو ہے نا اس قسم کی مریض آتے رہے، تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کے اوپر جن ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے ان کے اوپر دم کر دیا یا کوئی عمل ان کو دے دیا، وہ ٹھیک ہو گیا ہے.
लेकिन इससे हट के बाज़ आमिल लोग कहते हैं कि हम इसको बांधते हैं, जलाते हैं, बोतल में डालते हैं, ये अलग सी मौजूद है। लेकिन ये है कि आपने इस तजुर्बे के अंदर क्या देखा कि आया ये इन लोगों के ऊपर वाकई जिन्नात होते हैं या ये कोई और मसला, इनको कोई डिप्रेशन है या कोई ऐसे फ्रॉड है, ड्रामे करते हैं, इस तरह के आपके तजुर्बे में क्या मुशाहिदे में आया तकरीबन? मौलाना शाह वलीउल्लाह साहब, आप यहाँ मेरे साथ 9-10 साल हो गए, आप मेरे साथ रहते हैं मदरसे को में पढ़ाते हुए हिफ्ज़ की क्लास को, और आप एक अच्छे आलिम भी हैं और एक हाफिज़ भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आपने बहुत वफा के साथ पढ़ाया यहाँ पे। और फिर आपने ये चीज़ों को यहाँ देखा कि इन सालों के अंदर बेशुमार मरीज़, यानी जो कि पकड़ाई नहीं दे रहे थे, कोई बांध के लाए गए थे, और कोई जो है क्या नाम है मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालते थे, और मुख्तलिफ़ जो है क्या नाम है करतब अपना कर वो जो है ना मुख्तलिफ़ शक्लें बनाकर यहाँ आए। तो यहाँ जो जितने भी मरीज़ आए जो हैं, या 25 साल से जो मैं ये काम कर रहा हूँ, यानी अमलियात का काम कर रहा हूँ, ज़ाहिर बात है मैं तो कुरान हदीस के मुताबिक ही चलता हूँ। तो इन 25 सालों के अंदर जितने मरीज़ आए, ये 2 किस्म के मरीज़ आए मेरे पास, यानी होते 3 किस्म के हैं। यानी जो मरीज़ इस किस्म का आ रहा होता है, जिनको जंजीरों में बंधे होते हैं, लोगों ने पकड़े होते हैं, वो चीख पुकार करते हैं, ये हकीकत में 3 किस्में होती हैं। एक किस्म ये है कि इसमें हकीकत में कुछ दिमागी नफ्सियाती सिकाइट्री के मरीज़ होते हैं, जो कि उनके दिमाग ख़राब हुआ होता है, वो दिमाग पानी पानी होता है। जब दिमाग एक बीमारी है बस अल्लाह ने लगा दी, तो लोग उनको जिन्नात समझते हैं। वो बातें भी इस किस्म की करते हैं कि मेरे साथ जिन्नात है, तो वो फलां है, ढींगा है, मैं ये मार दूंगा, वो मार दूंगा, या मैं ये वो हूँ, इस तरह की दावे। ज़ाहिर बात है उसकी दिमाग ख़राब है, अब वो कुछ भी कह सकता है। तो ऐसे जो है ना बहुत सारे लोग आए जिनको जिन्नात समझ कर कि इनको जिन लगे हैं, वो ऐसे मरीज़ लाए गए। तो हम अपने तजर्बे की वजह से, क्योंकि दिन रात मरीज़ लाते हैं तो तजर्बा हो जाता है, लेकिन वो का तजर्बा कि डॉक्टर तजर्बे का मुकाबला तो नहीं कर सकता, तजर्बा अपने मकाम रखता है, हदीस में आता है। तो हमने अपने तजर्बे से उनकी बीमारी की तशख़ीस की कि साइकाइट्री का मरीज़ है, और ये जो है क्या नाम है नफ्सियात है इसको। तो हमने उसको मुख्तलिफ़ अस्पतालों की तरफ भेजे। मेरे तो अपने कुछ डॉक्टर हैं, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ख्वाजा साहब हैं एबाटाबाद में, जो साइकाइट्री का बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। इधर डॉक्टर रिजवान ताज हैं जो है ना कम्प्लेक्स में, उधर भेजता हूँ। और भी जो है डॉक्टर तारिक हैं पेशावर में, उधर भेजता हूँ इस किस्म के मरीज़ों को, तो वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो साइकाइट्री का मसला होता है। दूसरे जो ज़्यादातर मरीज़ आए, ज़्यादातर मरीज़ वो फ्राडी आए, बहुत सारे फ्राडी इस पूरी उम्र के अंदर। वो फ्राडी ऐसे कि उनके कोई मकासद होते हैं। आप मेरे साथ थे जब एक नौजवान यहाँ पकड़ाई नहीं दे रहा था, सारा घर के बर्तन तोड़े थे, तो आप मेरे साथ थे। मैंने यहाँ से डंडे लेकर जब उनके पास गए और उसको बता दिया कि भाई बताओ तुम्हारा जिन किधर है। वो किसी और शादी वादी के चक्कर में था, तो मैंने उसको बताया कि जिन चढ़ाकर बंदर जो है ना शादी नहीं कर सकता भाई, अपने आप को कोई असर रसूख इस्तेमाल करिए, आप कोई अपनी कमाल दिखा कि जो कोई तुझे रिश्ता दे। इस तरह जिन बनता रहेगा तो कौन तुमसे शादी करेगा। तो उसको समझ आ गई। तो इस तरह बेशुमार मरीज़ ऐसे लाए गए, लड़के और लड़कियां जिनके पास सवाए शादी की या कोई और ड्रामे के चक्कर के कुछ भी नहीं था, समझ आए, सब ड्रामाबाजी। और इस 25 साल दौर में जो हकीकत में जिन्नात वाला साए वाला 7 साल एक बच्ची लाई गई मेरे पास। 7 साल एक बच्ची थी कि जो 2-2.5 महीने से न बोल सकती थी और न वो हाथ पाँव उठा सकती थी, और उसको फालिज समझ कर अस्पतालों में घुमाते रहे, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि ये फालिज का बीमार नहीं है। तो फिर जो है उसको मैंने जो वज़ाइफ थे कुरान हदीस के, वो वज़ाइफ पढ़े तो वो खड़ी हो गई और उसने बोलना शुरू कर दी। और आज तक वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका तो शादी भी हो गई, बड़ी बच्ची हो गई, मेरा उनसे रब्ते हैं। और इसी तरह जो है क्या नाम है कि तो बस ये 3 किस्म के होते हैं। साइकाइट्री के मरीज़ होते हैं जो लोग उनको जिन्नात समझते हैं। अक्सर ज़्यादातर जो है वो फ्राडी होते हैं, उनके कोई ना कोई मकासद होते हैं, बस जिन चढ़ाकर अपने वो कहानियाँ बोलते रहते हैं कि ये हो जाए तो वो हो जाए। और ये जो हकीकत में ये तखब्बतु शैतान मिनल मस जो है ये बहुत नायाब होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं, समझ आए। एक मैंने आपको बताया 25 सालों में एक ही बच्ची आई, समझ आए। अगली बात जो है, अगर बिलफर्ज ऐसा मसला हो भी जाए, समझ आए, तो इसके लिए बड़े आसान वज़ाइफ हैं। आप समझते हैं कि किसी के साथ अगर जिन्नात लग गए हैं, आपको समझ आए कि इसके साथ शैतान का कोई दखल है, तो बहुत आसान वज़ाइफ हैं।
आयतुल कुर्सी जो है क्या नाम है दाएं कान में पढ़ना है, और जो है वैसे मंजिल की सारी आयतें पढ़ लें। मंजिल जो शेख ने लिखा है उसकी सारी आयतें दाएं कान में पढ़ें, और उसके बाद जो है क्या नाम है बाएं कान में भी पढ़ लें, और दाएं कान में भी अजान दे दे और बाएं कान में भी अजान दे दे। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। वजीफ़ा बता रहा हूँ, अगर सारी उम्मत मुस्लिमा के जितने भी लोग हैं, मैं उन सब को जो है ना ये वजीफ़ा बताता हूँ कि अगर आप समझते हैं कि हमारे किसी मरीज़ के साथ इस तरह का कोई मसला है, तो आपको किसी आमिल के पास कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुरान आता है, मंजिल की जो अंदर अल्लाह ने जो है वो मंजिल की जो मंजिल के अंदर जो इस्म आज़म है उसको आप पढ़ लें, और उसके दाएं और बाएं कान में अजान भी कह दें, तो ऑटोमेटिकली जो भी कोई चीज़ है वो निकल के चली जाएगी। तो आप लोगों को किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ तक जो फ्रॉडी होते हैं वो फिर उनका हल ये है कि जो तजुर्बा रखता है, कि जो समझता है कि ये बंदा फ्रॉडी है, तो फ्रॉड उसका जो है वो दूर करने के लिए फिर एक मुजर्रब आदमी की ज़रूरत होती है। तो ये सूरत हाल है। जज़ाकल्लाह मौलाना, आपने काफ़ी जो है ना हमें मालूमात दी। अल्लाह कुछ बस अल्लाह पाक जो है ना हमारी हिफाजत फरमाए।